My dear students, today we will continue spectroscopy and its applications. In previous classes, we studied about fundamental modes of vibrations, degree of freedom of vibrations. Now we will continue here the assignment of IR spectra. This is very important, very important to create a applications part to illustrate the structure of any organic compound, also inorganic compounds. It is the IR spectroscopy easily defined which type of functional group is there, how what type of functional groups present in a molecules we can identify easily by IR spectroscopy, in which we will study assignment of IR spectra. Vibration degree of freedom, vibration degree of freedom, we will calculate about CO2 formula, CO2 example and H2O example. Now you also calculate for the following examples as your homework. Okay, we will discuss here. I will give you the first is and CS minus how many vibrational degree of freedom, vibrational degree of freedom for these examples. First, second is that XeF2, how many degree of freedom is there, vibrational degree of freedom there. The third examples is XeO2 F2, O2 F2. How many vibrational degree of freedom present in following examples? You calculate as a homework, as a exercise for calculating the vibrational degree of freedom. These examples asked in many entrance exams and many competitive exams also. तो आगे चलते हैं, इसके बाद में शुरुआत करते हैं आपके असाइनमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रम। ये तीनों एग्जाम्पल्स जो है आपको घर पे एज ए होमवर्क करना है, और ठीक है, उसके बाद कोई दिक्कत हो यू कैन आस्क मी इजीली। ओके, चलो असाइनमेंट में बता रहे थे हम कि असाइनमेंट ऑफ डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने ये बताया था कि जो वेव नंबर्स हैं, वेव नंबर्स फॉर द calculating the strength of vibrational frequency, we use the wave number in the form of wave numbers. The energy of the vibration in the molecules is calculated in the form of wave number. The wave number is equal to 1 upon 2 pi c under root k of capital K upon mu. The capital K is called force constant and the mu is called reduced mass. Okay, so we can easily say that the vibration frequency is directly proportional to under root k and vibration frequency is inversely proportional to under root mu. Okay my dear students, आगे चलें। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी k पर फोर्स कांस्टेंट के ऊपर डिपेंड करता है। और ये फोर्स कांस्टेंट क्या है? फोर्स अकॉर्डिंग टू हुक्स लॉ द फोर्स कांस्टेंट स्प्रिंग के लिए लिया जाता था, फिर उसके लिए आपने लिखते थे माइनस के एक्स। फिजिक्स वाले स्टूडेंट ज़्यादा अच्छे से समझते हैं। तो वो के जो है दिस कॉल्ड फोर्स कांस्टेंट, कितनी ताकत से, कितने स्ट्रेंथ से हम स्प्रिंग को खींच सकते हैं, पुल कर सकते हैं, वो कैलकुलेट करने के लिए हुक ने जो है बताया था के। तो जो के है फोर्स कांस्टेंट हम यहाँ पर भी इस्तेमाल कर रहे हैं, क्योंकि हमें देख रहे हैं कोई भी बॉन्ड होता है वो ऐसे लाइक ए स्प्रिंग की जैसे बिहेव करता है। मान लीजिए कार्बन और इसके बीच में स्प्रिंग है, इसका जो स्ट्रेंथ है उस स्ट्रेंथ को कैलकुलेट करने के लिए
क्या रखा गया है, कांस्टेंट रखा गया है, जो कहा जा रहा है फोर्स कांस्टेंट के। तो के इज डिपेंड ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ द बॉन्ड, डबल बॉन्ड, ट्रिपल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड, एंड which type of bonds present in a molecules. It calculated by the force constant. Mu is the reduced mass. For reduced mass in the calculator for this m1 m2 upon m1 plus m2. तो m1 कार्बन का, ऑक्सीजन का, दोनों का जोड़ दीजिए और उसके बाद में उसको मल्टीप्लाई कर दीजिए, फिर घटा दीजिए, तो म्यू आता है। तो म्यू यानी जितना ज़्यादा उसका मास होगा किसी भी मॉलिक्यूल का, उतना ही उसकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी कम आएगी। जितना ज़्यादा स्ट्रेंथ, ज़्यादा मजबूत, ज़्यादा डबल बॉन्डेड, ट्रिपल बॉन्डेड होगा, उतना ही ज़्यादा उस मॉलिक्यूल के बॉन्ड को वाइब्रेशन करने के लिए ज़्यादा एनर्जी देनी पड़ेगी। तो ऐसी कंडीशन में उसकी वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है। फॉर एग्जाम्पल देखते हैं कि अगर मान लीजिए हमारे पास सिंगल बॉन्ड है, डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड, हम बात कर रहे हैं कार्बन कार्बन की, हम कार्बन हाइड्रोजन की बात नहीं कर रहे हैं। वी कैन नॉट टॉक अबाउट दैट, वी टॉक अबाउट द कार्बन कार्बन बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन का सिंगल बॉन्ड की बात होती है, तो सिंगल बॉन्ड पे कितने पाता है बताइए मुझे। ये 1200 डिग्री, 1200 सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में रेस्पेक्ट के अंदर इसकी फ्रिक्वेंसी आती है। टेंटेटिव है, लेकिन ये हम ऐसे इसलिए बता रहे हैं कि मान के चलते हैं कितना हमने एक्सपेक्टेड होता है और होती है। थोड़ा सा प्लस और 5 का अंतर आता है जब उसके सराउंडिंग केमिकल एनवायरनमेंट पे थोड़ा डिफरेंस आता है, उसके बारे में हम यहाँ पे वापस से डिस्कस करेंगे। तो ये डबल बॉन्ड के लिए यहाँ पे आती है अपना 1600 सेंटीमीटर इनवर्स, ट्रिपल बॉन्ड होता है तो 2250 सेंटीमीटर इनवर्स। आप देख रहे हैं जैसे जैसे मैं सिंगल बॉन्ड से डबल बॉन्ड से ट्रिपल बॉन्ड जा रहा हूँ, तो उसकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी जो है सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर, वेव नंबर्स के अंदर बढ़ती जा रही है। इसका मतलब ये हुआ कि डबल बॉन्ड की स्ट्रेंथ जो है ट्रिपल बॉन्ड से कम है। इसका मतलब इसकी स्ट्रेंथ जो थी वो सिंगल बॉन्ड की कम थी, डबल बॉन्ड थोड़ी ज़्यादा थी, ट्रिपल बॉन्ड की और ज़्यादा स्ट्रेंथ है उसको वाइब्रेशन करने के लिए। तो ऐसी कंडीशन में हम पता लगा सकते हैं कि किसी मॉलिक्यूल के अंदर, किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड के अंदर डबल बॉन्ड है, ट्रिपल बॉन्ड है या सिंगल बॉन्ड है। वी कैन कैलकुलेट इजीली बाय द यूज ऑफ वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी, वाइब्रेशन रोटेशन, वाइब्रेशन फ्रीक्वेंसी इज देयर। देन वी कैलकुलेट द कार्बन, द मास इज कांस्टेंट, therefore we cannot interpret it by the use of mu, but we calculate this strength by the directly to force constant. ओके, आगे चले। तो इसी प्रकार से आगे चलते हैं असाइनमेंट ऑफ IR स्पेक्ट्रा। ये थोड़ा सा इसका इंट्रोडक्शन था। जितना ज़्यादा फोर्स कांस्टेंट होगा उतना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगी, जितना ज़्यादा बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा उतनी ज़्यादा बॉन्ड शॉर्ट होता है, छोटा होता है। जितना बॉन्ड छोटा होगा वो उसकी मजबूती उतनी ज़्यादा होती है, उसकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी उतनी ही हाई ज़्यादा है। ठीक है, आगे चले, आगे देखते हैं। इस प्रकार से जो है हम किसी भी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी को निकाल सकते हैं। जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी जो है वो हमें किस प्रकार से दिखती है। हम जो वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी का स्पेक्ट्रा लेते हैं वो स्पेक्ट्रा हमें परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस और सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में, वेव नंबर्स के रूप में हम देखते हैं। ट्रांसमिटेंस के रूप में, ट्रांसमिटेंस, परसेंटेज ऑफ ट्रांसमिटेंस कितना उससे निर्गत फ्रिक्वेंसी IR अवरक्त क्षेत्र से इसमें जा रही है। ठीक है, तो इस प्रकार से परसेंटेज में है, सेंटीमीटर इनवर्स है, और हम जानते हैं इस प्रकार से इसका स्पेक्ट्रा जो आता है वो इस प्रकार से स्पेक्ट्रा जो है IR का स्पेक्ट्रा इस प्रकार से कैलकुलेट होता है। ये हम ध्यान रखेंगे हमेशा। इस प्रकार से जो है IR का स्पेक्ट्रा जो हमें कैलकुलेट होकर के ये चीज़ें मिलती है। ठीक है, तो इस प्रकार से जो है हम यहाँ से इसको नोट करते हैं, और यहाँ पे जो है हमारी 4000 तक लेते हैं, और यहाँ से 667 से या 200 शुरू करते हैं, 200 सेंटीमीटर इनवर्स से। तो यहाँ पे मान लीजिए कि एब्जॉर्बेंस ज़्यादा कब होगी किसी भी फ्रिक्वेंसी IR फ्रिक्वेंसी की, जब उसकी ट्रांसमिटेंस कम आएगी। तो यहाँ पे ट्रांसमिटेंस ज़्यादा होगी, इसका मतलब एब्जॉर्बेंस कम है।
इसका मतलब जितना ज़्यादा इसका ग्राफ जो है, जितना ज़्यादा नीचे टच करेगा इस लाइन के, उतना ज़्यादा उसकी एब्जॉर्बेंस होगी, क्योंकि उतनी ही कम उसकी ट्रांसमिटेंस होगी। देखिए इधर से ये अपन इसको करते हैं, ट्रांसमिटेंस कम है, एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है, इसकी ट्रांसमिटेंस ज़्यादा है, एब्जॉर्बेंस थोड़ी कम है उसकी तुलना में। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जितना ज़्यादा एयर स्पेक्ट्रा में जितना डाउन होगा, जितना स्पेक्ट्रा शार्प होकर के उसके स्केल के पास रेस्पेक्ट में आ जाता है, तो वो उतना ही ज़्यादा एब्जॉर्बेंस रखता है। ठीक है, तो ऐसे कंडीशन हम देख सकते हैं कि ये जो एब्जॉर्बेंस ज़्यादा है इसका ये है। इस प्रकार से अपन एक IR स्पेक्ट्रा बनाते हैं, ये बनता है। इस प्रकार के IR स्पेक्ट्रा को हम उसको देखते हैं। ठीक है, आया समझ में? तो इस प्रकार से ये जो चीज़ है कैलकुलेट करेंगे। यहाँ पे मान लीजिए यहाँ पे आपका डबल बॉन्ड के लिए देखा था, डबल बॉन्ड 1200 के आसपास, सॉरी 1600 के आसपास आ गई थी। तो 16 सेंटीमीटर पे आ रहा है, तो 16 सेंटीमीटर इनवर्स के रूप में अगर कोई पीक मिलती है तो वो किसकी होगी? मान लीजिए C डबल बॉन्ड C की है, C डबल बॉन्ड C की है। ठीक है, आया समझ में? आगे चलते हैं। उसके बाद में अपन देखते हैं को ट्रांसमिटेंस, और ये आ चुका है। इस प्रकार से ग्राफ अपन ने इसको इस पर IR ग्राफ इस प्रकार से हमें कैलकुलेट करने को मिलता है। आगे चले, इसके बाद में हम चलते हैं थोड़ा सा और आगे और इसकी एप्लीकेशन पार्ट की तरफ। इस प्रकार से ये अपना एप्लीकेशन पार्ट शो करता है, उसको करते हैं। तो हमें ये समझ में आ गया कि IR स्पेक्ट्रा जो है बॉन्ड की मजबूती पर, स्ट्रेंथ पर डिपेंड करता है, मीडियम पर डिपेंड करता है, किस मीडियम हमने लिया है, पोलर है नॉन पोलर है, और उस बॉन्ड के सराउंडिंग पर, केमिकल एनवायरनमेंट के ऊपर डिपेंड करता है कि IR फ्रीक्वेंसी कितने का है। We cannot calculate the exact IR frequency for the any molecules because so many environmental effects are there. Okay, देखिए आगे एप्लीकेशन पार्ट में चलते हैं। फ्रीक्वेंसी एब्जॉर्बेंस में अपन देखा थोड़ा बहुत। अब देखते हैं कि शिफ्टिंग ऑफ द एब्जॉर्ब फ्रीक्वेंसीज की एब्जॉर्बेशन फ्रीक्वेंसी की शिफ्टिंग किस प्रकार से होती है, कौन कौन से फैक्टर है उस पर जो उसको क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं। तो सेकंड नंबर अपन असाइनमेंट में चल रहे हैं कि फर्स्ट अपन देख रहे हैं क्या, शिफ्टिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी, शिफ्टिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसी। ठीक है, तो शिफ्टिंग किस प्रकार से कि पहले हमने कैलकुलेट कर रहे थे 1250 पर, लेकिन एक्सपेक्टेड कर रहे थे 1250 पर, लेकिन आए कितने पर? 1400 पर। तो ये शिफ्टिंग किस प्रकार से होती है उसे कहते हैं शिफ्टिंग ऑफ द एब्जॉर्प्शन फ्रीक्वेंसीज। उसके बारे में बात करते हैं। नंबर 1 हम देखेंगे क्या, कपलिंग। कपलिंग वाइब्रेशन, कपल्ड वाइब्रेशन या कपलिंग वाइब्रेशन, कपल्ड वाइब्रेशंस। कपल्ड वाइब्रेशन से क्या लेना देना है कि दो वाइब्रेशंस आपस में कपल्ड हो चुकी है। हम जानते हैं कि स्ट्रेचिंग जो है, स्ट्रेचिंग वाइब्रेशन जो है दो प्रकार की आपने देखी थी, एसिमेट्रिकल और सिमेट्रिकल। ठीक है, एसिमेट्रिकल के लिए एनर्जी हमें जो है वो क्या चाहिए, इसके लिए एनर्जी हमें ज़्यादा चाहिए, इसके लिए एनर्जी ज़्यादा चाहिए। बताइए किसके लिए एनर्जी ज़्यादा देने को पड़ती है। तो इस प्रकार से जो एनर्जी जो है सिमेट्रिकल वाइब्रेशन के लिए हम देखें और एसिमेट्रिकल वाइब्रेशन के लिए देखें तो एनर्जी हमें एसिमेट्रिकल के लिए ज़्यादा और सिमेट्रिकल वाइब्रेशन एनर्जी कम लेनी पड़ती है, क्योंकि सिमेट्रिकल चीज़ें चल रही है तो उसको एनर्जी, हकीकत है कि वो एनर्जी कम लेगा किसी चीज़ को वाइब्रेशन करने के लिए, इसकी एनर्जी ज़्यादा लेनी पड़ती है। लेकिन इन दोनों की फ्रीक्वेंसी का अंतर जो है, अंतर बहुत कम आता है, अंतर बहुत ही कम आता है। इस अंतर के कारण, कम होने के कारण क्या करते हैं, एक दूसरे के साथ में कपल्ड होने की कोशिश करती है, एक दूसरा इंटरेक्शन शुरू होता है इस एनर्जी लेवल के अंदर, और वो इंटरेक्शन के कारण लोअर फ्रीक्वेंसी की ओर ट्रांसफर हो जाती है, हायर और हायर की ओर ट्रांसफर हो जाती है। इस प्रकार के जो वाइब्रेशंस हैं जो क्रिएट होते हैं उसे बोलते हैं हम क्या, कपल्ड वाइब्रेशंस। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बता देता हूँ। CO2 एग्जाम्पल अधिकतर लेके चलते हैं किताबों में, हम यहाँ पे भी वो लेके चल रहे हैं। CO2 कपल्ड वाइब्रेशंस के लिए बात कर रहे हैं शिफ्टिंग ऑफ वाइब्रेशंस के अंदर। CO2 जो है इस प्रकार से हम एक्सपेक्ट करते हैं CO2 के अंदर, वैसे तो IR इनएक्टिव है, लेकिन
हम एक्सपेक्ट करते हैं C डबल बॉन्ड O के रूप में 1700 सेंटीमीटर इनवर्स में आना चाहिए। ठीक है, अब ये सिमेट्रिकल तो आपका हो गया है, ये एनर्जी किसी कम थी सिमेट्रिकल की और एसिमेट्रिकल की, तो एसिमेट्रिकल की एनर्जी ज़्यादा होगी, सिमेट्रिकल एनर्जी कम होगी। तो इस प्रकार से दो इसके चीज़ के मिलेंगे, सिमेट्रिकल और एसिमेट्रिकल वाइब्रेशंस। ठीक है, दो वाइब्रेशंस देयर, तो एक वाइब्रेशन हमें मिलता है ये, दूसरा वाइब्रेशन ये मिलता है। मान लीजिए इसका वाइब्रेशन ज़्यादा है एसिमेट्रिकल के लिए 1750 फॉर एसिमेट्रिकल, और सिमेट्रिकल के लिए 1700 के आसपास ये मिलना चाहिए था। ठीक है, ये मिलना चाहिए था, ये एक्सपेक्टेड है हमारे लिए। लेकिन कपल्ड वाइब्रेशन होने के कारण, इन दोनों का अंतर बहुत ही कम होने के कारण क्या हो जाएगा, ये एक दूसरे से कपल्ड करेगी, एक दूसरे के साथ टकराएंगी, इंटरेक्ट करेंगी। इंटरेक्ट करने के बाद में हमें मिलता है क्या, कि ये जो लोअर वाली लोअर पे चली जाती है, हायर वाली हायर पे चली जाती है। इस प्रकार से जो लोअर होगी वो और लोअर हो जाएगी, तो हमें क्या मिलता है, हमें मिलता है 1340 और 2350। तो ये मिल जाएगा, एक और वाइब्रेशन चला जाएगा, इसे बोलते हैं 1340 पर, और ये चला जाएगा हमारा हायर पर 2350 सेंटीमीटर इनवर्स। तो पहले मिलनी चीज एक्सपेक्टेड क्या थी, 1750 और 1700, लेकिन ड्यू टू द कपल्ड वाइब्रेशंस इट्स गो टू लोअर एंड हायर एट द पॉइंट ऑफ 1340 सेंटीमीटर इनवर्स एंड 2350 सेंटीमीटर इनवर्स।